چیئرمین تحریک انصاف عمران خان لاہور پہنچ گئے ہیں اور میڈیا سے بات کرنے لگے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مناظر میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان لاہور پہنچے ہیں اور چند ہی لمحوں میں وہ میڈیا کے نمائندگان سے ان کے سوالات کا جواب بھی دیں گے۔ اس وقت آپ مناظر میں دیکھ رہے ہیں لاہور میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اب سے کچھ دیر پہلے ہی پہنچے ہیں اور میڈیا کے نمائندگان سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ کل کے روز لاہور میں افسوسناک سانحہ پیش آیا تھا، اسی کے پیش نظر ہم دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان آج کے روز لاہور پہنچے ہیں، ان کے ہمراہ جہانگیر ترین بھی موجود ہیں۔ کئی قیمتی جانیں چلے گی، 2 سینئر پولیس آفیسرز بھی گئے۔ جی، سب سے پہلے تو ساری قوم کھڑی ہے ان لوگوں کے ساتھ، اور خاص طور پہ جو پولیس کے سینئر آفیسرز کی قربانیاں تھیں، ساری قوم ان کے ساتھ ہے، ان کی فیملیز کے ساتھ ہے، کیونکہ بڑا امتحان کا وقت ہے ان کے لیے، جو ابھی زخمی بھی ہیں۔ میں نے سنا ہے کئیوں کی حالت بڑی خستہ ہے، تو ان کے لیے بھی ساری قوم کی دعائیں ہیں۔ میری اس کے اوپر 4 آبزرویشنز ہیں۔ سب سے پہلے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر اگر عمل ہوتا تو ملک میں یہ جو تھوڑی بہت بھی دہشت گردی ہوئی ہے اور لگ رہا ہے ایسے کہ بڑھتی جا رہی ہے، یہ نہ ہوتی۔ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو جسٹس قاضی عیسیٰ کی پوری رپورٹ ہے، اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس میں آپ کہیں کہ یہ ان کے اوپر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی صفائیاں پیش کرے۔ وہ ایک سپریم کورٹ کے ایک ایسے جج نے وہ رپورٹ بڑی تفصیل میں جو لکھی تھی، اس کے اوپر ابھی بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کئی چیزوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ نیشنل ایکشن پلان میں کہ پولیس کو جب تک پولیس کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا، یہ رینجرز یا یہ فوج کے اوپر نہ چھوڑا جائے کہ وہ دہشت گردی ختم کریں گے۔ پولیس جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ایک معاشرے کے اندر وہ ادھر انٹیلیجنس گیدرنگ بھی ہوتی ہے، وہ علاقے میں بھی لوگوں کو جانتے ہیں، اور جتنا آپ کی پولیس کی سٹینڈرڈ اونچی ہوگی اتنا ہی آپ کی چانس ہے دہشت گردی کو صحیح معنی میں جنگ جیتنے کی۔ پختونخوا کے اندر ہماری پہلی باری آئی، یہ 3 سال صرف پہلی دفعہ تحریک انصاف کو باری ملی ہے۔ آج پاکستان کی مثالی پولیس ہے، اور یہ کوئی ہم نے جادو نہیں کیا، یہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پولیس کو پروفیشنلائز کرنا ہے، ہم نے پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے، ہم نے پولیس کو غیر جانبدار بنانا ہے، ہم نے اس کو پروفیشنلائز کرنا ہے، ہم نے اس کی بھرتیاں سفارشوں پہ نہیں این ٹی ایس سسٹم کے اوپر کرنی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ ہم نے کیونکہ ایک ایماندار اور پروفیشنل آئی جی کو لا کے اور ان کو پھر بالکل کوئی مداخلت نہیں کی، آج کرائم بھی نیچے گئی ہے۔ پختونخوا کی پولیس کو آپ انٹرنیشنل لیول سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں۔ جو ہم نے ایکٹ پاس کیا پولیس ایکٹ پختونخوا کی اسمبلی سے، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ پنجاب اسمبلی میں بھی تحریک انصاف پیش کرے گی وہ ایکٹ، سندھ اسمبلی میں بھی پیش کرے گی وہ جو ایکٹ ہم نے پاس کیا پختونخوا میں، جو کہ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرتا ہے، کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتی۔ یہ ہم اتنی دیر یہ دیکھتے آئے ہیں، کہتے آئے ہیں کہ جناب پولیس کو ٹھیک کریں گے، پولیس بگڑ رہی ہے، پولیس ٹھیک نہیں ہو رہی پنجاب میں اور سندھ میں۔ تو ایک ہم اسمبلی میں وہ لے کے آئیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کون اس کو سیبوٹاج کرتا ہے۔ اگر ان کی نیتیں صاف ہیں، اگر یہ پولیس کو پروفیشنلائز کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کو واقعی لوگوں کی فکر ہے، تو یہ اس ایکٹ کو پاس ہونے دیں گے اسمبلیز میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بدنیتی ہے، یہ پولیس کو ٹھیک ہی نہیں ہونے دیتے، اس لیے کہ انہوں نے انتقامی کارروائی کرنی ہوتی ہے پولیس کے ذریعے، انہوں نے لوگوں کو مروانا ہوتا ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی ہے، انہوں نے جھوٹی ایف آئی آرز کاٹنی ہوتی ہیں، انہوں نے ساری اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں وہاں رائے ونڈ میں بیٹھ کے، ان کے خاندان، ان کا بیٹا وہ شہباز شریف کا، وہ حمزہ، وہ ایس ایچ اوز اپوائنٹ کرتا ہے۔
जब आप इस तरह की पुलिस को पोलिटिसाइज करेंगे, कराची में, सिंध में भी आप हाल देख लें पुलिस का, या पंजाब में भी देख लें, और 6 दफा बारियां ले चुकी हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं है। और जिस तरह जब तक ये एक्ट पास नहीं करेंगे 6 दफा और भी बारियां ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ने लगा यहाँ पुलिस को। दूसरी चीज देखें, फाटा रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है। ज़रबे अज़ब का अगर फायदा उठाना है तो फाटा रिफॉर्म्स यानी फाटा को और पख्तूनख्वा का मर्जर इस वक्त इस मुल्क की जरूरत है, पाकिस्तान की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह लोग वापस जाएंगे फाटा में, उनके अंदर अगर हमने अभी से कदम ना उठाया, रिफॉर्म ना किया, उनके अंदर वापस आ सकती है दहशतगर्द। बल्कि वहां नौजवान जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, जिनके घर तबाह हो गए हैं, वहां कोई चीज खड़ी नहीं है, जब तक वहां रिहेबिलिटेशन नहीं होगी, वो लोगों के पास जब रोजगार ही नहीं होगा, वो उनके घर बर्बाद हुए हैं, और वो जब देखेंगे कि दहशतगर्द या जो भी तालिबान अगर बीच में उनके आ गए, वो फिर से शुरू हो सकता सब कुछ। इसलिए फौरी तौर पे पख्तूनख्वा का और फाटा का मर्जर करना चाहिए, इनको ज्वाइन करना चाहिए, बैठ के फिर आहिस्ता आहिस्ता जो कानून है वो पख्तूनख्वा के आहिस्ता आहिस्ता वहाँ जाना चाहिए, उनके साथ मुशावरत करके फाटा के लोगों से। लेकिन जो पैसा खर्च करना है रिहेबिलिटेशन के लिए, वहाँ उजड़ा हुआ है सारा फाटा, वो होगा तब जब वहाँ कोई सिस्टम बनेगा, वहाँ जब लोकल गवर्नमेंट लेके आए ताकि उसके जरिए पैसा खर्च करे। अभी जो पैसा भी जाता है वो ज़ाया हो जाता है, करप्शन में चला जाता है। तो फाटा रिफॉर्म्स या पख्तूनख्वा का और फाटा के दूसरा बड़ा अहम इशू है, अभी तक कोई इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। कैबिनेट की मीटिंग थी जिसमें ये पास होना था, मैंने सुना है वो उन्होंने मुलतवी कर दिया। इससे नुकसान हो रहा है, टाइम ज़ाया कर रहे हैं। और तीसरी कि अगर ऑपरेशन रेंजर्स का हो सकता है कराची में, तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकता? किससे बचा रहे हैं ये? क्या इन्होंने पाले हुए हैं कि ये हमारे लोग हैं जो दहशतगर्द हैं और वो दूसरों के पीछे जाना, हमारे को नहीं जाना? ये जो गुड एंड बैड तालिबान या टेररिस्ट की बात करते हैं, ज़रूरी है कि एक अगर मसला है और सारे पाकिस्तान अफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं यहाँ ऑपरेशन करते उन लोगों के खिलाफ जो कि इस वक्त दंदनाते फिर रहे हैं? शहबाज शरीफ ने कहा जनाब के तालिबान को मैसेज दी चंद साल पहले कि जनाब पंजाब में कुछ ना करना, बाकी मरते जाएं लोग वहां से, पंजाब में ना हाथ लगाना। यानी ये अगर एटीट्यूड है एक सबसे बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर का, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सही माने में एक मुल्क इकट्ठा होके ये दहशतगर्दी की जंग जीतेगा? इसलिए मैं अभी भी कहूंगा कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने दस्तखत की हुई है, हम सब की कंसेंसस था, उस प्लान को फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इसके नुकसानात बहुत हैं। ये जो थोड़ा बहुत अमन आया ज़रबे अज़ब के बाद और ये कराची के ऑपरेशन के बाद भी, ये अगर हमने अब एक्ट ना किया, ये सब ज़ाया हो जाएगा। और मुश्किल ये है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को स्वाय पैनामा के अपनी आप जान बचाने के लिए, पैनामा की और इनकी गवर्नमेंट को, इनके वजीरों को स्वाय पैनामा के, उनको पता ही नहीं है कि मुल्क में भी गवर्नेंस देनी है। तो पीसीबी पीएसएल करा रहा है। देखें, असूलन ये होना चाहिए था, सारी दुनिया की डेमोक्रेसीज में ये होना था कि जब उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा जो पैनामा का है, तो उनको किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनने देना चाहिए था, अपने आप को क्लियर करके वापस आते। ये ही यूसुफ रजा गिलानी को मशवरा नवाज शरीफ ने दिया था कि आप रिजाइन करके अभी अपने आप को क्लियर करके वापस आए। नवाज शरीफ को क्लियर करके इसलिए आना चाहिए था, गवर्नमेंट काम ही नहीं कर रही। सारी गवर्नमेंट का काम है कि इनको बचाने के लिए, इनकी करप्शन बचाने के लिए। खान साहब, आपने नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र किया, इल्जाम ये लगाया जाता है और चौधरी निसार ने बरमला भी कहा कि कलदम तंजीमें जो हैं वो बेजरर हैं, उनको दहशतगर्दी से अलग करना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान के अंदर इंतहा पसंद तंजीम और कलदम तंजीमें दोनों नेशनल एक्शन प्लान के अंदर है, इन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। आप समझते हैं कि चौधरी निसार वजह हैं, वजीर दाखिला जो हैं, और वफाकी हुकूमत जब अमल नहीं करेगी तो सूबाई हुकूमतें किस तरह अमल करेंगी? देखें, नेशनल एक्शन प्लान पे मैं रिपीट करता हूँ, सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने साइन किया हुआ है उसके ऊपर। MQM अल्ताफ हुसैन ने 1 घंटा डिले करवाया और फिर अल्ताफ हुसैन ने भी उसके ऊपर MQM से साइन करवाया जब ये
नेशनल एक्शन प्लान बना था। तो जब सारों का कंसेंसस है तो क्यों नहीं इसके ऊपर अमल हो रहा, ये पूछना चाहिए सर। तो पीसीबी पीएसएल कराना चाह रही थी, एक पीएसएल कराना चाह रही थी, क्या दोबारा क्रिकेट के खिलाफ साजिश है? कल शहरियार खान की जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जनाब फाइनल जो है वो पीएसएल का पाकिस्तान में होगा, 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद मैक्सिमम और लाहौर में होगा, समझते हैं कि कोई बैनुल-अक़वामी साजिश भी है पाकिस्तान के खिलाफ? हो सकता है, देखें इसमें तो कोई शक नहीं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये एक हो सकता है कि मैसेज हो कि लाहौर में जो फाइनल करना हो उसको पाकिस्तानी प्लेयर्स तो नहीं डरेंगे, लेकिन फॉरेनर्स जो हैं वो तो डर जाएंगे ना इस चीज़ से। तो हो सकता है उनको डराने के लिए किया हो, मैं कह नहीं सकता। खान साहब अगर हम क्रिकेट के एक लेजेंड इमरान खान से ये पूछें कि क्या वो पीएसएल का फाइनल लाहौर में चाहते हैं तो आपकी क्या राय होगी? देखिए, मैं तो पीएसएल सारा पाकिस्तान में चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक नहीं चाहता कि सिर्फ फाइनल लाहौर में हो। लेकिन मसला ये है कि जो फॉरेनर्स डरते हैं उन बाहर और ज़्यादा इसको हाईलाइट किया जाता है। जब कोई दहशतगर्दी होती है तो बाहर और ज़्यादा खौफतारी हो जाता है। तो उससे होता क्या है कि जो फॉरेनर्स हैं वो डरते हैं। और वो जो श्रीलंका का बस का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद एक इंटरनेशनली ये तासुर चला गया कि पाकिस्तान एक सेफ जगह नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए, इंटरनेशनल टूर्स के लिए। ओके, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान मीडिया से बात कर रहे थे लाहौर पहुंचने के बाद, और हम आपको ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ भी कैप्टन मुबीन के घर पहुंच गए ताजियत के लिए। लेकिन इस वक्त जो आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान लाहौर पहुंचे हैं और मीडिया से बात कर रहे थे, और उनका कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए क्योंकि इस पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस है। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि अगर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होता तो ये सानेहा पेश ना आता। उन्होंने कहा कि सब कुछ फौज और रेंजर्स पर नहीं छोड़ा जा सकता।